Welcome back, students, to my channel. So what we studied in the last video lecture, so let us recapitulate those points which we studied or which we discussed in the last video lecture. We read about the test, MN test, which is used to check the uniform convergence of a given sequence of functions, right? Then उसके बाद हमने एक we had done a question, using MN test. Now, in today's class, we will be discussing or we will be studying more questions on MN test, so that you can get a hold of or you can easily digest this test, which is MN test. So let us see some examples. Show that the given sequence of functions, show that the sequence of functions, so that the sequence so that the sequence fnx, where fnx is, where number one, fnx is given to be x divided by 1 plus n x square, and you need to check that this is uniformly convergent. This is uniformly convergent on any interval containing the point 0, है ना? On any interval, on any interval containing the point 0, right? So जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में किया था, उस लास्ट वीडियो को आप जरूर देखें. उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से इस क्वेश्चन को टैकल करना है, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. तो इस केस में इन दिस एग्जांपल mn will be supremum of fnx minus fx, right? And x is coming from the set A. In this case, or in this example, in this question, limit fx will be 0, है ना? इसमें लिमिट fx जो है वो 0 आएगी. कुछ नहीं करना है, you just have to take n common from here, and n common लेने के बाद ये हो जाएगा x by n, 1 by n plus x square. So this goes to 0, this goes to 0, so it will be 0 by x squares, and this goes to 0 as n tends to infinity, right? So fx 0 हो जाएगा. उसके बाद जो भी यहाँ पे फंक्शन आएगा, क्या आएगा यहाँ पे फंक्शन? सुप्रीमम की जगह सुप्रीमम, यहाँ पे फंक्शन यही रहेगा, x by 1 plus n x square, set A, right? इसको मानना है फिर आपने y मानना है इसको x plus 1 by n x square, right? इसको y मानना है. फिर उसके बाद you have to find its first derivative, that is dy by dx. फिर y to be maximum, for y to be maximum and minimum, for y to be maximum and minimum, put y prime is equal to 0. फिर y prime 0 put करने के बाद you will be getting a number of points. So in this example you will be getting x is equal to 1 by root n and x is equal to minus 1 by root n, right? So 2 points. So this will be a point of, उसके बाद
y डबल डेरिवेटिव भी फाइंड करना है आपको, दैट इज डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना। सो you just have to substitute the point x is equal to 1 by root n in this, and you will get y prime is less than 0. Y prime is less than 0. So this will not be a point of maximum, this will be a point, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, y prime is strictly greater than 0. So x is equal to 1 by root n is a point of maxima. एंड जब इस पॉइंट को हम यहाँ पे रखेंगे इस वाले केस में, तो mn इज इक्वल टू सुप्रीमम, इस पॉइंट को जब हम यहाँ पे रखेंगे x की जगह, देखो x की जगह रखा हमने 1 बाई रूट एन, नीचे मिलेगा 1 प्लस एन इंटू एक्स स्क्वायर विल बी और 1 बाई एन, सो n से n कैंसिल हो गया, सो इट इज दिस कमिंग आउट टू बी 1 बाई 2 रूट n. सो mn आया हमारा यहाँ पे, mn क्या है हमारे यहाँ पे 1 by 2 root n, and this converges toward this, goes to 0 as n approaches to 0. so यहाँ से mn किस पे टेंड कर गया, mn टेंड कर गया 0 पे as n approaches to 0. so given sequence of functions is uniformly convergent on any interval containing the point 0. question second question. Second question is given sequence of function f and x is x by n 1 plus nx square. ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में 2 साल पहले 2018. I think it is nearly about 4 years back. So 4 साल पहले ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, 2 साल तो एग्जाम ही नहीं हुए. सो ये क्वेश्चन आया हुआ था दैट चेक द कन्वर्ट दैट इज इट इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन दिस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन द होल रियल लाइन आर. सो डोमेन इज योर द होल रियल लाइन. ठीक है, वैसे ही करना है. यहाँ पे लिमिट एफ एक्स आएगी आपकी 0, लिमिट एफ एक्स विल बी 0. एज यू कैन सी ऊपर न्यूमरेटर में n है नहीं, n इज नॉट प्रेजेंट हियर. नीचे डिनोमिनेटर में देखो n है, सो जैसे ये n इन्फिनिटी पे जाएगा तो ये भी इन्फिनिटी पे, डिनोमिनेटर विल आल्सो टेंड टू इन्फिनिटी, सो ये भी इन्फिनिटी पे जाएगा, तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज 0. सो fx विल बी 0 फॉर एवरी x इन r. सो fx 0 आ गया. उसके बाद यहाँ पे आपका जो y बनेगा, y क्या बनता है आपका, y क्या बनता है, y यही होता है. देखो y इज नथिंग बट दिस इज y योर f एन x, इसको हम y लेते हैं, है ना, इसको हम y लेते, तो y क्या बनेगा यहाँ पे, f एन x रखो तो y और f x 0, ये तो y क्या होगा आपका, एंड y इज दिस विल बी और मॉडुलस नहीं आएगा, मॉडुलस नहीं आएगा यहाँ पे, ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे मॉडुलस नहीं आएगा यहाँ पे. सो इट इज दिस विल बी योर y हो जाएगा x बाई n. सो दिस विल बी योर y. ठीक है, ये आपका y हो जाएगा. उसके बाद वही होगा सेम प्रोसेस, y डैश निकालो, y प्राइम, फिर y डबल डैश निकालो, y प्राइम और y डैश निकालने के बाद आपको y प्राइम 0 से इक्वेट करना है. फिर कुछ पॉइंट्स मिलेंगे आपको, उनको क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं. कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, 1 2 पॉइंट्स मिलेंगे. फिर उन पॉइंट्स को डबल डेरिवेटिव में रख के चेक करना है. क्या चेक करना है कि दैट इट मस्ट और इट शुड बी स्ट्रिक्टली लेस देन 0. जिस भी पॉइंट पे आपको डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 मिल गया, दैट विल बी अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, और उसी पॉइंट को आपको रखना है यहाँ पे mn पे रखना है उस पॉइंट को. जैसे ये फंक्शन है तो मान लो यहाँ इस इन दिस केस योर x विल बी, यहाँ से हमें इन दिस केस दिस इज द पॉइंट्स विल बी 1 बाई अंडर रूट n. ठीक है, और दोनों के दोनों पॉइंट्स जो है वो इस डोमेन में लाई कर रहे हैं, दोनों के दोनों पॉइंट्स R में बिलोंग करेंगे. ये भी चेक करना होगा आपको कि दोनों के दोनों पॉइंट्स उस डोमेन में लाई करने चाहिए, तो दोनों के दोनों पॉइंट्स जो है वो लाई करेंगे. तो mn की वैल्यू आएगी, mn की क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे, mn इज योर 1 बाई रूट n, है ना.
और नीचे होगा n इंटू वन प्लस n इंटू एक्स स्क्वायर, तो x यहाँ पे x क्या है 1/√n, तो 1/n, तो कैंसिल हो जाएगा, so it is 1/2n into √n, so 1/2n raised to the power 3/2, and this will tend to 0 as n tends to, तो आ गया. So by mn test convergence is uniform. Convergence is uniform. ठीक है. तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस है. मैं हर एक क्वेश्चन को नहीं करवा सकता हूँ इस वीडियो लेक्चर में. वेल यू कैन ट्राई, आप ट्राई कर सकते हो इन सारे क्वेश्चंस को. सो क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 is check the uniform convergence of the sequence of function f and x sin nx by, this is uniformly convergent on the interval. ठीक. आप as we know that sin of theta, the maximum value it can attain is -1, and the minimum value it can attain is -1, and the maximum it can attain is 1. Sorry. So for every theta, तो we will make use of this inequality. थीटा को रखो आप nx, थीटा को nx रखा, थीटा को रखा nx 1. नाउ डिवाइड कर दो इस इनइक्वालिटी को √n से. नाउ यू कैन अप्लाई द स्क्वीज प्रिंसिपल और सैंडविच प्रिंसिपल. दिस इज योर bn, this is your an, this is your cn. So if an, so this an tends to 0 as n tends to infinity. Similarly bn भी 0 पे टेंड करेगा as n tends to infinity. तो by principle, by sandwich और squeeze principle, cn को भी 0 पे ही टेंड करना होगा. So therefore by sandwich principle or squeeze principle, right, by sandwich or squeeze principle, limit of this sin of nx which is your cn, इसकी लिमिट भी क्या आएगी 0 ही आएगी for every x in 0 to 2 pi. तो लिमिट हमने फाइंड कर ली. सो इट इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस सीक्वेंस है ना, पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर गया ये. सो दिस एफ एन एक्स कन्वर्जेस टू एफ एक्स पॉइंट वाइज ऑन 0 to 2 pi, क्योंकि हर एक पॉइंट पे सीक्वेंस की लिमिट क्या आ रही है 0. सो इट कन्वर्जेस पॉइंट वाइज, इट कन्वर्जेस पॉइंट वाइज. उसके बाद हम क्या करते थे, उसके बाद mn will be your supremum of fnx minus fx, and x is coming from 0 to 2 pi, right. तो mn क्या हो जाएगा हमारा, mn will be supremum of modulus of sin x is coming from 0 to 2 pi. So देखो वैसे भी हम 1/n को हम बाहर ले सकते हैं इजीली, क्योंकि इट इज अ फंक्शन ऑफ x, राइट. यहाँ पे वेरिएबल x इज वेरिंग. 1/√n से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि x वेरी कर रहा है यहाँ पे, तो 1/√n को हम इजीली बाहर निकाल सकते हैं. सो दिस इज एंड n इज अ पॉजिटिव नंबर, सो मॉडुलस भी हट जाएगा. सो साइन ऑफ nx, x इज कमिंग फ्रॉम 0 to 2 pi, है ना. तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको अभी बताया है 1. क्या ये 1 इस इंटरवल में वैल्यू अटेन हो जाएगी? द मैक्सिमम वैल्यू इट कैन अटेन इज 1, एंड द मैक्सिमम वैल्यू, तो इसका मतलब ये होना है कि जब nx हो हमारा
पाई बाई टू, क्योंकि साइन पाई बाई टू क्या होता है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, और 1 वैल्यू कब आएगी पाई बाई टू पे। इसका मतलब nx को क्या होना पड़ेगा, nx को होना पड़ेगा पाई बाई टू। सो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आएगी हमारे यहाँ से पाई बाई टू एन, पाई बाई टू एन, राइट। तो पाई बाई टू एन इस इंटरवल के बीच में लाई कर जाएगी ये वैल्यू 0 बाई 2 पाई के बीच में, राइट, बाई चूजिंग एन टू बी वेरी वेरी लार्ज। क्योंकि जैसे ही n वेरी वेरी लार्ज होगा, सो ये वैल्यू कहाँ पे टेंड करेगी, दिस विल टेंड टू 0, यानी ये 0 के नेबरहुड में, ये वैल्यू में 0 के नेबरहुड में मिल जाएगी। जैसे ही बाई चूजिंग n टू बी वेरी वेरी लार्ज, ये वैल्यू कहीं यहीं पे होगी, यहीं पे, ठीक है, यहाँ जैसे होगी ये वैल्यू बाई चूजिंग n टू बी, पहले मान लो अगर ये वैसे भी ये हमेशा इससे लेस ही आएगा 2n, ठीक है, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है आई थिंक 3.14, राइट, और 2n, this is 2n, so n can be any natural number for 2n, so it is 2 4 4, जैसे जैसे n इंक्रीज होता जाएगा, जैसे n इंक्रीज होता जाएगा, ये वैल्यू दिस इज योर 1, तो ये वैल्यू 0 के क्लोज होती जाएगी। सो इस तरह की वैल्यू हम हमेशा इस इंटरवल में फाइंड कर सकते हैं। सो इसका मतलब कि nx जो है वो पाई बाई टू हो सकता है, यस। सो द मैक्सिमम वैल्यू इट कैन अटेन इज 1 at so you can write here the maximum value of this is 1, so you can write here maximum value of sin nx is 1, कब होगी 1, जब ये nx क्या होगा पाई बाई टू, है ना। यहाँ पे हमने रखा कि जब nx पाई बाई टू होगा, उसके बाद हमने x निकाला, x निकल के आया पाई बाई टू एन, फिर उसके बाद हमने चेक किया क्या पाई बाई टू एन इस इंटरवल में है, यस, इस इंटरवल में मिल जाएगा पाई बाई टू एन, इस इंटरवल में पाई बाई टू एन बाई चूजिंग एन टू बी लार्ज नंबर, इस इंटरवल में लाई कर जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि दिस विल बी 1, सो इट इज mn टू mn क्या है हमारा यहाँ पे 1 बाई रूट n एंड इट गोज टू 0 एज n गोज टू इन्फिनिटी। सो इसका मतलब हुआ कि ये जो हमारा सीक्वेंस ऑफ फंक्शन था, दिस बाई mn टेस्ट दिस कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन द गिवन डोमेन 0 to 2 पाई, ठीक है।